We will plan a physical program of yours at Indore branch also. Now, moving towards second technical session of today's meeting, that is practical aspects and do's and don't on code of ethics and designation of directors. And for addressing on the same, we have with us our own Central Council member, CA Kemisha Soni ma'am. And yes, ma'am is very well known to all of us. So I don't think that is there any introduction required of her. So I directly invite you, ma'am, for your deliberation to the members. Over to you, ma'am. Thank you, Ankushji. I would like to share information related to that series. Today, we will cover last part of our code of ethics related practical related issues. Tomorrow, we will take up 300 series and 500 series plus 240 most important series related to that fraud, because during our audit procedure, if we will follow that particular standards, even I would say that each and every standard, if we will follow by our article or by our chartered accountant or our associate chartered accountant, in that case you will save yourself with any further inquiry proceedings, disciplinary, as Balaji has also mentioned about that, these standards are like a protection shield or make I would say suraksha kavach or mask for our profession, because we can save ourselves from that type of any inquiry or disciplinary mechanism. So tomorrow we are taking even SQC1 and SA220 related to that quality control for an audit of financial statement, SA250 related to other law regulations which are applicable in audit of financial statement, and day after tomorrow we will take up reporting standard, formats of reporting standard for any audit, even small audits, society, educational trust, and any audits. And second most important, various assignment related to बैंक ऑडिट पर्पस से जितना भी सर्टिफिकेशन या डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं या एश्योरेंस देते हैं और रिपोर्ट देते हैं, तो रिलेटेड दैट प्रैक्टिकल इश्यूज दैट विल टेक अप बाय अनिकेत तलाटी जी, CCM. So that is about our other subjects related to this series. And thank you, Balaji, for even you have referred that Titan report, how this practically we are using that particular para as it is from our standards also. So now I will start, because now 45 minutes left, so I will start with our code of ethics. Thank you, Balaji, for joining us, and you may continue with us. Yariman, you can join us. So dear members, जनरली जो कोड ऑफ एथिक्स का हम आई विल टेक अप वॉल्यूम 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 में बहुत सारा प्रैक्टिकल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजी कि हम हमारी लैंग्वेज में उसको समझ सके specifically. And volume 2 related I have compiled certain practical question answer, so according that I will take up in that sense only. So just give me a minute so I can share my slide. So is it visible, Ankush or Kirti? Yes, yes, ma'am. Okay. So as ethical standard board, you all are aware that constituted in 76, and about our code of ethics, first edition code of ethics, previously usko code of conduct kaha jata tha, and 63 में published हुआ था, and after it came to be known as code of ethics for the first time in 2001. And our immediate previous code of ethics, that is converts code of ethics with international standard, जैसा मदान जी ने भी कहा है. Just I would like to add in that particular area, because हम international standards को as it is adopt नहीं करते हैं, converts करते हैं according to our domestic act regulations and situations. तो इसी तरीके से code of ethics also converged with ISBA code of ethics first time in 2009, and after 11 years, even I would say 15 साल बाद ये revised code of ethics, क्योंकि वो 2009 code of ethics was based on 2005. So after 15 years we have converged, revised these code of ethics. तो इस code of ethics में changes किस किस reason से हैं, that we will discuss in my next slide. So these are the important publication of code of ethics, I would say holy books for our profession, क्योंकि
पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हमारा प्रोफेशन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे प्रोफेशन से, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन implementation of code of ethics. So these are important publications. First I would like to share with you all कि ये publications I have given here link also, so you can download these publications. So later on next 3 slide I have mentioned important publications which are really very useful in our day-to-day practice. So member, you can download these publications from our site. Here I have given link also regarding the all publication. Apart from volume 1, 2, 3, you can download. आप ये जो मैं आपको publications refer कर रही हूँ, that publications are very important. All practicing chartered accountant. तो ये हमारी ऑफिस कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, हमारे डेस्कटॉप के फोल्डर में जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए. जो अपार्ट फ्रॉम 3 वॉल्यूम 1 FAQs related to bank assignment, if you are handling as a bank statutory branch auditor, so which type of assignment you can continue with that particular assignment, maybe revenue audit, stock audit, TDS compliance related certain function, certain other functions related to bank assignment, so we have compiled in the form of FAQ. Next, related to NOC requirement, so also you can refer that publications, you can download that FAQs. Then books, article and presentation. Nowadays maximum members, their presence are there in social media, so that publications is also very important related to FAQ on books, articles and presentation. Then about KYC norms. Dear members, आप कोई भी assignment accept करते हैं, whether your client is individual, partnership firm, HUF, कोई भी client है, तो KYC उनका लेना mandatory है since 1st January 17. So what are the norms related to that KYC? So you can download these KYC norms related requirement from our website. Next, important publications related to advertisement and website guideline, because after use of technology and digitalizations, we have revised this guideline related to advertisement. So our members can advertise their practice at social media platform and at various newspaper with this following this guideline. And also we have revised website guideline, so you can download that guideline also, because so many members have their own website, so this guideline is there. Then FAQ on ethical issues up to 20, we have revised this FAQ on ethical issues, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. और सबसे लेटेस्ट पब्लिकेशन है डायरेक्टर सिंप्लिसिटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. If as a practicing chartered accountant you are in the position of any board as a director simpliciter or independent director, so certain provisions are there. So in that publication we have covered Companies Act related requirement related to independent director, code of ethics requirement, and also we have incorporated FAQs related to independent directors provisions. इसके अलावा जो डिजिटल लर्निंग हब पे वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स ऑन डिजिटल लर्निंग हब, सो आवर मेंबर कैन गेट benefit of that, and our member can get structured CP hour through that. And also ethical standard board is available on social media platform. We have started learning series also on Facebook, Instagram and Twitter, so member can refer that also. So next important publications, what I would like to suggest, each and every member please download these publications are related to auditing standards related, what Balaji has already mentioned. Reporting standard you can take easily format of SS 700 through that publication. Then next is related to COVID reporting, so here I have mentioned link of that key where you will have to add that particular para in your reporting requirement. Then e-booklet on sample checklist on standard on auditing specifically for small and medium practitioner. Just checklist, entire checklist related to standards are there, so member you can refer that publication. And for certification, assurance and audit and other attest function you can refer report or certificate. यदि आप नेटवर्क सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, यदि आप टर्नओवर का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो आपको ये जो रिवाइज 2016 का पब्लिकेशन है उसी फॉर्मेट में इशू करना है, टू whom so may ever.
बहुत सारे हम लोग जैसे व्हाट्सएप में भी रहते हैं कि लोगों ने अभी शेयर कर रहे हैं कि इस टाइप से जो सर्टिफिकेट है दैट इज नॉट वैलिड एज पर अवर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट गाइडेंस नोट रिक्वायरमेंट. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर, इफ यू आर इशूइंग सर्टिफिकेट, please issue this format only for issuing any certificate. Then standard on assurance engagement, जो हम बैंक से related, Balaji has mentioned about that, related to prospective financial information. You can issue these type of report to the bank. Then you will have to follow SAE 3400, SRS 440 in case of compilation, reconciliations related engagement. So these standards are also very important. Just I am giving example. Yesterday I have received one query from our member कि मुझे बैंक एक सर्टिफिकेट बोल रही है कि प्रोजेक्टेड आप साइन करके दो, उसका टर्नओवर मेरे क्लाइंट का सिर्फ 10 करोड़ है, बहुत बड़ा क्लाइंट नहीं है, उसके लिए मुझे यूडिन करना पड़ेगा, मुझे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में करना पड़ेगा. काफी मेंबर्स बोलते हैं कि आप तो साइन कर दीजिए बैलेंस शीट, ऑल्दो पिछले 3 साल के जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD में फाइल करा था, पर बैंक पर्पस से वो सर्टिफाई करा रहे थे, तो साइन करने में क्या है, उनका ये कहना था. तो जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि उस एग्जाम्पल से कौन कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है. 3 साल का उनका जो ऑडिट था वो ऑडिट नहीं था, बिकॉज 44 AD में लिया था, तो उसको बैंक पर्पज से सर्टिफाई है. तो 3 ऑप्शंस थे, या तो आप पूरा उसको ऑडिट करें, ऐसे 700 में रिपोर्ट दें और उसको सबमिट करें. सेकेंड था कि 3 साल का आप कंपाइलेशन कर लीजिए एज पर 4410. उन 3 साल के लिए आप एज पर SRS 4410 यू कैन इश्यू दैट रिपोर्ट. एंड एश्योरेंस के हिसाब से जो आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री, क्या आपके मतलब ट्रेंड है, प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है, और किस बेसिस पे आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका एश्योरेंस ये आपने रिपोर्ट दिया है, तो SAE 3400 इशू किया, और आपको यूडीन भी इशू करना है फॉर बोथ 4410 3400. तो ये पूरा जो कवर करेंगे बैंक ऑडिट वाले सेशन में, बैंक रिलेटेड जो इशुएंस है, अनिकेत जी विल कवर दैट एस्पेक्ट्स. तो आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल ऑफ दैट. नाउ हम लोग 35-40 मिनट्स में आई विल ट्राई टू कवर एंटायर कोड ऑफ एथिक्स इन with correlate with practical aspects. So हमारे 3 वॉल्यूम है, we have 3 volumes related to code of ethics. Volume 1, previously it was only 1 publication, and in that particular publication part A था जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एथिकल स्टैंडर्ड है उसको कन्वर्स करके पार्ट A था. Now it is like volume 1, और ये वॉल्यूम 1 कन्वर्स विथ इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स. वॉल्यूम 2 हमारे खुद के डोमेस्टिक टैक्स रेगुलेशंस एंड अवर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस को जो रिलेटेड टू ऑडिटर से इनकॉर्पोरेटेड. प्रीवियसली इट वाज देयर एज अ पार्ट बी, इस बार वॉल्यूम 1 है. वी हैव सेपरेटेड ऑल वॉल्यूम्स रिलेटेड टू कोड ऑफ एथिक्स, एंड वॉल्यूम 3 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स कंप्राइजेस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, काउंसिल, अपीलेट अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, जितने भी डिसीजन है उसका कंपाइलेशन वॉल्यूम 3 में है. बहुत इजी है आपको एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना. जस्ट आई एम गिविंग 6-7 पॉइंट्स, जो 6-7 पॉइंट आपको ईच एंड एवरी सिचुएशन में एप्लीकेबल करने हैं, देन यू कैन बी एक्सपर्ट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, दैट आई कैन से. सो आई विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम 1 and 2. 1 और 2 में कैसे डिफरेंस है और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो वॉल्यूम 1 टोटली बेस्ड ऑन सेल्फ चेक और सेल्फ रेगुलेटरी मेजर. बहुत सारे को लगता है टोटल प्रोहिबिशन है कि हमारे पिछले सालों की फीस बाकी है हमारे क्लाइंट से, तो इज इट प्रोहिबिटेड? नो, दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड. वो किस में फॉल करेगा? वॉल्यूम 1 में. वॉल्यूम 1 के प्रोविजन के हिसाब से हमको चेक करना है. हमारा सेल्फ रेगुलेटरी मेजर है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो आगे की स्लाइड में वी विल डिस्कस. वॉल्यूम 1 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल बेस्ड, और वॉल्यूम 2 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, डूज और डोंट्स है. वॉल्यूम 2 में हम कह सकते हैं कि जो प्रोविजन है क्लियर कट है कि ये हमारे सीए कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. एज पर कंपनीज एक्ट अलाउड है, नहीं अलाउड है, प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, दैट इज अंडर वॉल्यूम 2. तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. सेकेंड, जब भी ऑडिटर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एनी प्रोविजंस आर देयर इन अदर एक्ट एंड रेगुलेशन,
फॉर एग्जाम्पल आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं, इफ यू आर हैंडलिंग बैंक ऑडिट, इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज, तो उस पर्टिकुलर एक्ट रेगुलेशन जैसे सेबी, तो आप जिसका भी ऑडिट कर रहे हैं उस एक्ट रेगुलेशंस में ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर क्वालिफिकेशन, ऑडिटर डिसक्वालिफिकेशन, इनडेप्थनेस प्रोविजन, इनडेप्थनेस मींस आपने उससे लोन ले रखा है समझो 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, और उस पर्टिकुलर एक्ट रेगुलेशन में डिफरेंट प्रोविजन है, तो आपको वो प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ऑडिटर्स रोटेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, all type of provisions. If there are any differences between our code of ethics and under that particular regulation, so first we have to follow that particular regulation requirement, and in absence of that our code of ethics provisions will applicable. Third point, before taking any assignment, please bifurcate nature of assignment or work. That is the difference between audit, assurance, certification, non-assurance, review, management function, and according that all standards will applicable, whether ethical standard, whether auditing standard. तो according nature of assignment, first document आपका होगा कि which type of engagement you are handling. Fourth point, to whom you are providing your services. आप आपकी services किसको provide कर रहे हैं, whether that is PI. PI means public interest entity, insurance company, banking company, individual, firm, trust, companies. आप किस पर्टिकुलर एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी सर्विसेज, तो फर्स्ट केवाईसी से और उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग से आपका असाइनमेंट स्टार्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट, देयर आर सर्टेन प्रोविजन विच इम्पैक्ट बोथ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें दोनों में जैसे फीस रिलेटेड प्रोविजन से, जैसे ऑडिटर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। सबको लगता है कि एनओसी का प्रोविजन सिर्फ वॉल्यूम 1 में है कि हमको आउटगोइंग ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना है और आफ्टर कम्युनिकेशन वी कैन एक्सेप्ट ऑडिट। नो, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन वॉल्यूम 1 आल्सो रिलेटेड टू ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, वो भी हमको फॉलो करना है और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। तो वो हम कैसे आगे प्रैक्टिकल, आई विल गिव एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। Fifth point, there are certain provision which related to our ongoing assignment also. For example, ऐसा नहीं है कि जब आप नए अपॉइंटमेंट होते हैं तभी आपको एनओसी रिलेटेड या सर्टेन प्रोविजंस चेक करने। नो, वॉल्यूम 1 के सर्टेन प्रोविजंस आर एप्लीकेबल रिलेटेड टू ऑनगोइंग असाइनमेंट ऑल्सो। ऑनगोइंग असाइनमेंट में फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप जिस क्लाइंट का ऑडिट करते हैं उसके स्कोप में एक्सपांड कर दिया है, सर्टेन क्लाइंट के साथ आपका लिस्टेड समझो कंपनी का आपका ऑडिट है, और बिकॉज ऑफ दैट कि आपका ही पार्टनर उसमें डायरेक्टर हो गया है, तो चेंज इन दैट रिलेशनशिप, तो आपको हर साल आपके ऑडिट असाइनमेंट में चेक करना पड़ेगा कि आपने उससे कोई लोन तो नहीं लिया है, कोई आपका ऑडिट, आपका पार्टनर उसमें डायरेक्टर तो नहीं हो गया है, सर्टेन फैमिली रिलेशनशिप तो नहीं हो गई है, सर्टेन टाइप ऑफ मर्जिंग तो नहीं हुआ है जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, नाउ दैट इज कन्वर्ट विथ कंपनी, तो आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस चेक करने पड़ेंगे। इट मींस ऑनगोइंग आपके जो असाइनमेंट है उसका भी प्रोविजन चेक करके आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट एथिकल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सम टाइम legally permissible but ethically not, in that case suggestion from ethical standard board we should go for ethical. So that is certain 6-7 point before implementing any standard, these all 7 points are important. अब हम in this part of the presentation first we will see provision of volume 1 because this provision will implement in each and every situation of our assignment. तो let's discuss about that. सबसे पहला है कि that is mandatory or not in implementation of code of ethics. So it is well known maxim that ignorance of law is no excuse. The non-compliance of provision of the volume 1 and volume 2 will result in liability under disciplinary mechanism of the institute. So ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल तीनों स्टैंडर्ड हमको मैंडेटरी फॉलो करने हैं। बहुत सारे मेंबर का कहना रहता है कि इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड हम लोगों को इंप्लीमेंट करने हैं, अब हमको ये लगता है कि साइन ही ना करे कोई चीज,
सिर्फ हम कंसल्टेंसी दें, एडवाइजरी दें, बट ये साइनिंग वाला फंक्शन वो कर दें। मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट कर रही हूँ, रियली सभी स्टैंडर्ड्स ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, कि हमारे एथिकल स्टैंडर्ड हो। और जितना हम इनकम टैक्स और जीएसटी में चेंजेस फेस करते हैं, जितने उनके सेक्शंस को हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, उससे भी कम समय में आप ये स्टैंडर्ड आपके डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, आपके आर्टिकल वेल वर्स्ड विद दैट ऑल स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको सीए फाइनल में पढ़ते हैं। तो जस्ट आपको एक चेकलिस्ट रखना है एंड यू कैन साइन इजीली एनी डॉक्यूमेंट, एंड रियली वेरी सिंप्लीफाइड है। जस्ट बिफोर साइनिंग मेक एश्योरेंस कि ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल आपने अपने डे टू डे असाइनमेंट में करे हैं कि नहीं। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, 45-46 स्टैंडर्ड्स आर देयर इन ऑडिटिंग। ethical standard से related document I will share about that. Just first I will brief about volume 1. just because of revised standard, ethical जो हमारा code of ethics है totally revised, and structuring किस तरीके से है, each and every concept in the form of introduction. आफ्टर इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर पैरा में ये प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल फीस से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, उसकी रिक्वायरमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे फॉलो करनी है, दैट हैज बीन गिवन इन लेटर R1 R2 करके रिक्वायरमेंट दिया है। एप्लीकेशन मटेरियल, इलस्ट्रेशन, फॉर्मेट, एग्जांपल वी हैव गिवन इन एप्लीकेशन मटेरियल, तो मेंबर कैन दैट ऑल्सो कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से उसको फॉलो करना है। So this is entire overview of structured code of ethics volume 1 part 1 सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे जॉब में है, चाहे प्रैक्टिस में है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में है। यदि उनका नंबर मेंबरशिप नंबर है और पार्ट 1 एप्लीकेबल सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट पे होगा, पार्ट 2 इंडस्ट्री में जो सर्विस में चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन पे एप्लीकेबल होगा, पार्ट 3 प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एप्लीकेबल होगा, और पार्ट 4 भी ऑब्वियस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड डेवलप करे हैं। इन ईच एंड एवरी असाइनमेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। तो टोटली यदि ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट है तो 4A अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू 4B एप्लीकेबल होगा, एंड उसके साथ ग्रॉसरी दी हुई है सर्टेन डेफिनेशन एब्रीविएशन जो हमारे पब्लिकेशन में है। सो यहाँ पर वो मेजर चेंजेस जो हमारे रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स में है पहले कभी नहीं थे। नो क्लार ऑलरेडी मेंशन बाय बालाजी रिगार्डिंग दैट नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, बट एथिक्स के हिसाब से बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन डेफर्ड है ये प्रोविजन। changes in provision of taxation service to the audit client, that is already deferred. Prohibition on management responsibility to the audit client already applicable, we will discuss later on that. And related to separate independent standards, पहले सिर्फ एक पैराग्राफ था इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड का, अब टोटली अलग स्टैंडर्ड डेवलप करे हैं। शुड और शेल का डिफरेंस है, अब शेल यूज करा है, इट मींस मैंडेटरी हमको उस प्रोविजन को फॉलो करना है। एंड 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपसे कुछ वायोलेशन हो जाता है, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट में कोई डिस्क्वालिफिकेशन दी है, उसके बाद भी यदि आपने वो ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है तो आपके पास टाइम है कि 60 डेज 90 डेज के अंदर आप रेक्टिफाई कर लें जो भी ब्रीच हुआ है, अनइंटेंशनल ब्रीच ऑफ एनी स्टैंडर्ड वायोलेशंस एज पर अवर कोड ऑफ एथिक्स। तो रेक्टिफिकेशन और करेक्टिव मेजर्स रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स में अवेलेबल है। बहुत ज्यादा मैं इन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आई विल नॉट डिस्कस, जस्ट ये 5 फंडामेंटल, दिस इज लाइक अ क्रिकेट ग्राउंड, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल और 6th वन इज इंडिपेंडेंस। इन 6 को हमको ऑलवेज माइंड में रखना है फॉर एनी असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, फर्स्ट इंटेग्रिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ऑलवेज मैंने पहले भी सेमिनार में मेंशन करा है, आप जो भी असाइनमेंट हैंडल करते हैं दैट इज मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड दैट यू आर अपडेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड रेगुलेशन जिसके अंदर में आप ऑडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैंडलिंग ऑडिट रिलेटेड टू टैक्स, इनकम टैक्स ऑडिट, तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
technical standard as per Income Tax Act regulations, you are aware about that. So that is fundamental principle, professional competence and due care. आप डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट आप हैंडल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉरेंसिक असाइनमेंट हैंडल कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपर्टाइज नीडेड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ असाइनमेंट. तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि यू हैव एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट. आपने कोई सीपी सेमिनार अटेंड किया है, या आपके पास एक्सपीरियंस है, या आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अपडेटेड एंड यू आर हैंडलिंग दैट टाइप ऑफ असाइनमेंट. देन कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑलवेज कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन रखना है, whether ongoing assignment and after assignment also. And exceptional cases are there in case of auditor appointment. आप outgoing auditor और incoming auditor से आप share कर सकते हैं. And if law requires certain type of information, तो आप वो information share कर सकते हैं. Otherwise always आपको confidentiality रखना है. Professional behavior, 24/7 वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर, जो हमारे प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करता है. तो दैट इज वन फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल बिहेवियर. अब हम लोग डिस्कस करते हैं थ्रेड्स की इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. आई विल डिस्कस अबाउट दैट. 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये 5 टाइप के यदि थ्रेड्स आपके हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये थ्रेड्स आपके, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी असाइनमेंट यू विल हैव टू चेक दिस टाइप ऑफ थ्रेड्स. फर्स्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेड. दिस ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटर हैज टू रिव्यू, when auditor has beneficial interest in a client performance. जैसे आपके पार्टनर है, वो उस पर्टिकुलर उसमें लोन ले रखा है, तो इन दैट केस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रहेगा. ये इसीलिए मैं आपको जस्ट ओवरव्यू कर रही हूँ, बिकॉज आपको डॉक्यूमेंट में रखना पड़ेगा कि यू हैव फॉलो दिस प्रोसीजर फॉर द हैंडलिंग एनी असाइनमेंट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट. This occurs when an auditor has to review work that they previously performed. आपने वही ऑडिट करा है जिसके लिए आपने अकाउंटेंसी कंसल्टेंसी दी है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा. एडवोकेसी थ्रेट, आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसी को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस एडवोकेसी थ्रेट. फेमिलियरिटी थ्रेट, अब लॉन्ग एसोसिएशन आपका उस क्लाइंट के साथ है, तो उसको आपको चेक करना है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ ओपिनियन फेमिलियरिटी थ्रेट्स आपने एलिमिनेट करा है कि नहीं. Then finally last है intimidation threat. These occurs because of deterrence. Sometime client may try to harass or bully auditor into giving qualified or adverse opinion. So here I have given certain example for particular type of threat, जैसा कि self interest threats because of direct financial interest है हमारे मेंबर का, कोई भी फॉर्म के किसी भी पार्टनर का, या टोटल फीस की हमारी डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर क्लाइंट के हैं, तो फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा. डियर मेंबर, आपको ये थ्रेट हटाना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन एक्सेप्ट दैट ऑडिट. देन मेंबर ऑफ द एश्योरेंस टीम, यानी जो आपका ऑडिट टीम का मेंबर है, उसका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ है. इन केस ऑफ सम टाइम लोन और ये टाइप का भी यदि आपका फिनेंशियल उसमें इंटैक्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, शेयर होल्डिंग है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा. सेल्फ रिव्यू, चेकर मेकर सेम नहीं हो सकता, सिंपली दैट कंसेप्ट विल एप्लीकेबल. एडवोकेसी, जनरली यदि आप आपके क्लाइंट को इनकम टैक्स अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन आपको चेक करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑडिट फंक्शन कि आपका ऑडिट का जो ओपिनियन है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहा है. दैट एडवोकेसी थ्रेट विल बी देयर. यदि आप आपके क्लाइंट को रेफर करते हैं, उसका प्रोपोगेट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को रेफर करते हैं, उसके शेयर को प्रमोट करते हैं, तो एडवोकेसी थ्रेट है. तो यदि आप ऑडिट कर रहे हैं तो अगेन आपको चेक करना पड़ेगा. फेमिलियरिटी थ्रेट, जनरली यदि हम लोग 30 साल से कोई ऑडिट असाइनमेंट कर रहे हैं हैंडल, और इस साल यदि आप उसको समझते हैं कि यदि आपने उसको एडवर्स ओपिनियन दिया, तो हो सकता है वो क्लाइंट आपका दूसरे सीए के पास जाएगा कि रिपोर्ट क्वालिफाइड करी है. इन दैट केस फेमिलियरिटी थ्रेट्स होकर. तो ये सर्टेन टाइप ऑफ थ्रेट आपको देखना पड़ेंगे. जैसे इंटिमिडेशन थ्रेट, यदि आप क्वालिफाइड देते हैं तो आपको आपका क्लाइंट कहता है कि वो आपको हटा के दूसरे सीए से करवाएगा ऑडिट.
दिस टाइप ऑफ थ्रेट डेफिनेटली हमको एलिमिनेट करने. हाउ यू कैन एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ थ्रेट? बाय यूजिंग सेफगार्ड. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपर्टीज की यदि रिक्वायरमेंट है तो आप कह सकते हो यू हैव एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट, you have taken CP credit related to that assignment, and after that you are handling. So after using safeguard you can accept any audit. So this is conceptual framework approach जो जनरली हर असाइनमेंट में आपको चेक करना पड़ेगी. यहाँ पर डियर मेंबर्स मैं आपको सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आई विल शेयर, एंड इवन इफ यू विल से तो दैट ऑल्सो आई विल शेयर. जस्ट गिव मी दैट आपका ईमेल आईडी या आप उसको व्हाट्सएप देंगे तो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दैट. First, conceptual framework related requirement. This approach is only indicative कि how the ethics is different from law. That is totally self-regulatory. कोई भी असाइनमेंट आता है सबसे पहले आपको उस पर कोई थ्रेट्स तो नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है. थ्रेट्स हमने डिस्कस किए, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एनी टाइप ऑफ थ्रेट्स. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स आपको उसका इवेल्युएशन करना है उस थ्रेट का कि कितना इम्पैक्ट आपके ऑडिट असाइनमेंट में उस थ्रेट के कारण है. सपोज आपने किसी क्लाइंट से लोन ले रखा है और उस इवेल्युएशन के कारण उसका मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, 10,000 का है, 20,000 का है, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में 1 लाख है, एंड फर्दर वी हैव प्रपोज फॉर 5 लाख. तो उससे कम यदि इम्पैक्ट है तो आपने थ्रेट इवेल्युएशन के द्वारा चेक करा. आफ्टर एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर थ्रेट, applying after safeguard, you can accept or you can reduce that, but you can accept or you can decline that particular type of assignment. So before accepting any assignment ये conceptual framework approach आपको follow करके उस particular assignment में लगाना रहेगा. एथिकल स्टैंडर्ड से सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन फीस रिलेटेड रहेगा, जिसमें सपोज आपने कोई ओवरड्यू फीस है आपके किसी क्लाइंट से तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ओवरड्यू फीस आपका ओपिनियन डिफरेंस तो नहीं आ रहा है. लास्ट 3, 4, 5 साल का यदि फीस आउटस्टैंडिंग है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज जो हमारा इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है लोन एंड गारंटी उसमें भी फॉल करेगा. प्लस इधर भी आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ ओवरड्यू फीस आपका इस पर्टिकुलर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स आप कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे रिड्यूस कर रहे हैं. तो उसका सेफगार्ड क्या दिया है, यू कैन रिकवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फीस from your continuing auditor, continuing client before signing your audit report. तो आप before signing this year audit report you can say आपने maximum overdue fees recovered कर दी है और उसके बाद आपने ऑडिट असाइनमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं तो दैट इज डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा. फिर फीस फ्रॉम सिंगल क्लाइंट, यदि आपका डिपेंडेंसी आपके पास एक ही क्लाइंट ऐसा है जो आपकी टोटल फीस का 40-50% उस पर्टिकुलर क्लाइंट से है तो अगेन प्रोहिबिशन नहीं है बट आपको चेक करना पड़ेगा. इन केस ऑफ कॉन्टिंजेंट फीस अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिंजेंट फीस जो हमारा रेगुलेशन 192 के हिसाब से अलाउएबल है या दूसरा यदि हम कोई कॉन्टिंजेंट या परसेंटेज बेसिस फीस वी आर एक्सेप्टिंग तो दैट प्रोविजन रिलेटेड डॉक्यूमेंट. थर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट रिलेटेड एनओसी रिक्वायरमेंट, केवाईसी रिक्वायरमेंट, आउटगोइंग ऑडिटर से आपका कम्युनिकेशन और कंपनीज एक्ट में जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोविजन है वो डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेंगे. देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रखना है ऑडिटर रोटेशन, पार्टनर रोटेशन. सपोज कोई ऑडिट आपने कंटिन्यू 5 साल किसी 7 इयर्स तक कोई पार्टनर ने साइन करा है तो आपको कूलिंग ऑफ देना है तो वो आपको डॉक्यूमेंट आपका रखना पड़ेगा. लिस्ट ऑफ एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ असाइनमेंट वो डॉक्यूमेंट आपको रखना है. देन इंटरनल कम्युनिकेशन जो हमारा एसक्यूसी 1 है और इंटरनल कम्युनिकेशन जैसे कोई ऑडिट आपके पास अपॉइंटमेंट आता है फर्स्ट आप चेक करेंगे उसमें कोई पार्टनर का फिनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई पार्टनर का रिलेटिव उसमें डायरेक्टर तो नहीं है, कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई पोस्ट पोजीशन आपके एम्प्लॉय की तो उसमें नहीं है. दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट.
देन यूडीन रिलेटेड फॉर्मेलिटी आपने करी है, नंबर ऑफ यूडीन जनरेट करना, नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट, नंबर ऑफ कंपनीज ऑडिट, ये डॉक्यूमेंट अंडर एथिकल स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ेंगे। देन यदि आपने कोई एक्सपर्टाइज रिलेटेड असाइनमेंट हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट रिलेटेड, फोरेंसिक रिलेटेड, सर्टेन डिजिटल एनवायरमेंट रिलेटेड, सर्टेन ब्लॉकचेन, एआई, इस टाइप के कोई ऑडिट है, तो आपके किसी पार्टनर ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन में रखना है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देन यदि आप ऑडिट क्लाइंट को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज या कोई दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इफ दैट इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 144, तो आपको डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दैट, मतलब कोई आपको थ्रेट्स नहीं है एंड यू कैन कैरी ऑन एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट, यू कैन कैरी ऑन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो दैट आर सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कोड ऑफ एथिक्स। पार्ट 3 टोटली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एप्लीकेबल है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको हर सिचुएशन में अप्लाई करना है कि थ्रेट्स तो नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, इंडिपेंडेंस पे, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ असाइनमेंट। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हम लोग उसको क्वेश्चन एंड आंसर में करेंगे कि वॉल्यूम 1 में कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन है रिलेटेड टू प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। सो जैसे कि वॉल्यूम 2 में specifically provisions are there related to NOC requirement. In particular situation you cannot accept that audit because यदि undisputed audit fees बाकी है। बट वॉल्यूम 1 का भी रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन से है। फर्स्ट प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। प्रपोज्ड अकाउंटेंट विल यूजुअली नीड क्लाइंट परमिशन, आपको क्लाइंट से परमिशन लेना है, आउटगोइंग ऑडिटर से रिटर्न में कम्युनिकेशन की, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। सेकंड, यदि आपको क्लाइंट नहीं बताता है कि आपका आउटगोइंग ऑडिटर से परमिशन नहीं देता है रिटर्न में कम्युनिकेशन की, तो व्हाट यू विल डू, आप देखोगे कि कौन आपका आउटगोइंग ऑडिटर है, देन यू कैन चेक। आपको अपना रीजनेबल स्टेप्स लेना है कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसा तो नहीं है जो पॉसिबल थ्रेट से हो सकता है। आउटगोइंग ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, इसीलिए वो ऑडिटर चेंज करके आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड भी रखना है। तो नॉन एक्सेप्टिंग असाइनमेंट के कौन कौन से रीजन हो गए डियर मेंबर्स? 1, नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 139 140 कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो कोई नॉन कंप्लायंस रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन है, वो आपको फॉलो करना है। सेकेंड, नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट। थर्ड, प्रोविजन रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, इस सिचुएशन में भी आपको चेक करना है कि उसका क्वालिफिकेशन का रीजन क्या था, एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट। 2 केस में तो आप असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, बट इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट में आफ्टर एनालाइजिंग सिचुएशन यू कैन एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट। सेम प्रोसीजर, सेकेंड ओपिनियन, आप दूसरे से सेकेंड ओपिनियन यदि कोई क्लाइंट मांगता है तो सेकेंड ओपिनियन के केस में भी आपको फॉलो करना है। फीस और रेमुनरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको फॉलो करना पड़ेंगे कि रेफरल फीस है, कॉन्टिंजेंट है, परचेस ऑफ सेल ऑफ फर्म है, सपोज एक फर्म दूसरे फर्म से यदि एक्विजिशन है, सपोज गुडविल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो भी हमारे पार्ट 3 में फॉलो करेंगे। लेवल ऑफ फीस बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जैसे बहुत सारे मेंबर्स को देखा होगा कि लो फीस कोट करते हैं, तो लो फीस के कारण आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उस लो फीस के कारण आपकी सर्विसेज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यू हैव अप्लाइड ऑल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्टैंडर्ड यू हैव गिवन रिपोर्ट। बिकॉज ऑफ दैट फीस, वेरी लो फीस पे यदि आपने कोट किया है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं दिया है, तो दैट इज अंडर अवर पार्ट 3, ये प्रोविजंस आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, प्रोविजंस अप्लाई होंगे। देन रिलेटेड टू इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी, पहले भी वो प्रोविजंस थे, जस्ट एक्सटेंडेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस में है उन पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, और टोटली प्रोहिबिशन इन केस ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस, गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी रिलेटेड। नेक्स्ट, कस्टडी ऑफ क्लाइंट्स असेट, स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजन, यदि आप क्लाइंट से कोई भी असेट की कस्टडी आपके पास है, इवन इन केस ऑफ लाइक कैश, बैंक अकाउंट्स और सर्टेन दिस टाइप ऑफ कस्टडी, तो बिफोर टेकिंग कस्टडी और आफ्टर टेकिंग कस्टडी सर्टेन जो प्रोविजन है दैट ऑल्सो
फॉलो करना पड़ेंगे. नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डेफर्ड. तो आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम 6:50 ऑलरेडी है, आई एम जस्ट कीपिंग दीज स्लाइड्स. और जो रेलिवेंट स्लाइड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन से फीस रिलेटेड प्रोविजन है. अगेन आपको ओवरड्यू फीस के लिए ऑलरेडी आई हैव अपडेटेड डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा. यदि पिछले सालों का आपका ओवरड्यू है तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट है. जस्ट बिफोर साइनिंग दिस ईयर ऑडिट रिपोर्ट मैक्सिमम अमाउंट यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट क्लाइंट. कॉन्टिजेंट फीस का 192 के हिसाब से परमिजिबल नहीं है. बाकी के जो सर्कमस्टांसेस है उसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं. कॉन्टिजेंट फीस में जो नया प्रोविजंस ऐड हुआ है that is insolvency professional can take on percentage basis, and for rendering non assurance service to non audit client उस केस में आप परसेंटेज बेसिस और कॉन्टिजेंट बेसिस पे फीस ले सकते हैं. Important provisions related to auditor rotation and firm rotation. फर्म रोटेशन प्रोविजन कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको फॉलो करने हैं. बिकॉज ऑफ चेंज इन कंपनीज एक्ट 13 ये प्रोविजंस अप्लाई हुए हैं. एंड जो पार्टनर रोटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स. बिकॉज यदि आप कोई भले टैक्स ऑडिट साइन कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से समझो 5 साल 6 साल 7 साल हो गए हैं, तो की ऑडिट पार्टनर का रोटेशन इस बार आपको चेक करना पड़ेगा एज पर रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स. आपके पर्टिकुलर असाइनमेंट में दिस इज न्यू कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया है. की ऑडिट पार्टनर कौन कौन कहला सकते हैं? वन इज एंगेजमेंट पार्टनर, वन इज रिव्यू पार्टनर, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड थर्ड वन इज अदर की ऑडिट पार्टनर उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में जो इन्वॉल्व है. तो आपको डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा XYZ असाइनमेंट में कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल कीर्ति जी कोई ऑडिट असाइनमेंट कर रहे हैं तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा इफ कीर्ति जी साइनिंग और एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, और 7 ईयर तक यदि उन्होंने एज अ पार्टनर उसको साइन किया है तो 5 ईयर आपको कूलिंग ऑफ रहेगा. दूसरे पार्टनर उसको साइन कर सकते हैं जिसका कि उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में कूलिंग ऑफ नहीं है. तो ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू पार्टनर ऑडिटर रिक्वायरमेंट, रोटेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट. If there is separate provision related to partner rotation, for example, certain NBFC के केस में, certain housing company के केस में partner rotation requirement certain different provisions है that will applicable. Otherwise हमारे जो code of ethics के ये cooling off period requirement है वो members को follow करना पड़ेगा. Regarding cooling off requirement, engagement partner पहले ऐसा होता था कि 7 year और 2 साल का cooling off up to our revised code, up to our previous code. revised code में क्या रहेगा? यदि जो engagement partner है 5 year cooling off, EQCR है उनके लिए 3 year cooling off, और जो KAP है other key audit partner है उनके लिए 2 साल का. और यहाँ पर भी आपको ये चेक करना पड़ेगा यदि कॉम्बिनेशन है एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की ऑडिट पार्टनर तो भी कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स रहेगा. तो ये आपको प्रोविजन स्पेसिफिकली डियर मेंबर्स 100% आपको इस बार चेक करने पड़ेंगे. कोई भी क्वेरी हो मेंबर्स आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स रोटेशन रिक्वायरमेंट एज पर रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट ईयर दूसरा पार्टनर उसको साइन और एज ए एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा. 5 साल के कूलिंग ऑफ में 100% कूलिंग ऑफ रहेगा. वो दूसरा असाइनमेंट भी हैंडल नहीं कर सकता है ऑडिट के अलावा भी. समझो कंसल्टेंसी है, डिस्कशंस है ऑन डॉक्यूमेंटेशन, कहीं भी यदि वो डिस्कस करता है ऑडिट टीम के साथ आर्टिकल के साथ तो 100% कूलिंग ऑफ रहेगा इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. Then firm rotation, as I have mentioned, as per Companies Act requirement, this is important slide. यदि आप ऑडिट किसी क्लाइंट का करते हैं तो इस पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट के लिए यदि आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑडिट के साथ अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विस दे रहे हैं या ये लिस्ट जो सर्विसेज की 600 में दी है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग दोस टाइप ऑफ सर्विसेज तो आपको चेक करना पड़ेगा कुछ सर्विसेज टोटली प्रोहिबिटेड. फॉर एग्जाम्पल
अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज आपके ऑडिट क्लाइंट को टोटली प्रोहिबिटेड. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यू कैन कैरी ऑन विथ योर ऑडिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल, आप यदि उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नॉन कंपनी नहीं है वो, तो डेटा आपके पास आ रहा है और यू आर फाइलिंग रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, यू कैन कैरी ऑन दैट फंक्शन. वैल्यूएशन सर्विस, अगेन आपको चेक करना पड़ेगा उस वैल्यूएशन सर्विसेज के कारण फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट है. इफ मटेरियल इम्पैक्ट इज देयर, मटेरियलिटी एज पर अगेन हमारे जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, जो SA 320 के हिसाब से मटेरियलिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा. और अकॉर्डिंग दैट यदि मटेरियल इम्पैक्ट ऑन फिनेंशियल सर्विसेज है तो आप वैल्यूएशन सर्विसेज ऑडिट के साथ पैरेलल नहीं कर सकते. बट यदि मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, यू मे कैरी ऑन वैल्यूएशन सर्विसेज टू योर ऑडिट क्लाइंट. टैक्स सर्विसेज डेफर्ड है, टुडे वी विल नॉट डिस्कस. इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोहिबिटेड है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यदि सेक्शन 144 कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपका क्लाइंट कंपनी है, इन दैट केस totally prohibited. But other than non-corporate assessee, other than company assessee, आपको चेक करना है कि वो डिसीजन का मटेरियल इम्पैक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं है. जस्ट यू हैव डिजाइन, अपने क्लाइंट को दिया है, क्लाइंट ने डिसीजन मेकिंग करके वो पर्टिकुलर सर्विसेज इंप्लीमेंट करी है, तो इन दैट केस यू कैन परफॉर्म ऑडिट विद दैट टाइप ऑफ फंक्शन. अदर लीगल सर्विसेज, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्योरली एज एन एडवोकेट, तो अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो टाइप का फंक्शन मटेरियलिटी प्लस आपका दूसरा यदि पार्टनर है वो ऑडिट फंक्शन कैरी ऑन करे, एंड यू आर अपीयरिंग एज एन एडवोकेट फॉर योर क्लाइंट एट वेरियस टैक्स अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, यू आर असिस्टिंग देम. तो इन दैट केस सेफगार्ड ये है कि दूसरा पार्टनर ऑडिट फंक्शन करे. बट यदि उसका मटेरियलिटी इतना है कि टोटल इम्पैक्ट ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट 70-80% है, तो आपको दो में से एक सर्विसेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन योर सर्विसेज. रिक्रूटमेंट सर्विसेज टोटली प्रोहिबिटेड, बिकॉज ये देखा गया है कि यदि आपने ही उसका अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हायर करा है, आपने ही उसके एम्प्लॉई और फाइनेंस और CFO और CEO को अपॉइंट करा है, तो ये टाइप की सर्विसेज ऑडिट क्लाइंट के साथ restricted, prohibited है. But independently all type of services you may carry on as a management consultancy services, जो वॉल्यूम 2 में फॉल करती है. तो this is about this, all services are related to non assurance services to an audit client. So again Kirti ji, because 7 बजी है, we are already late, तो 20 मिनट्स कम से कम लगेंगे, अदरवाइज वी कैन टेक अप इन अवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर आई हैव कवर्ड इन दिस पार्ट. तो 15-20 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं. ठीक है मैम. सो डिपेंड ऑन your view, so I will take up 15-20 minutes and I will complete all volume 2 question answers which are relevant to day practice. So quickly, if you will permit, I will cover. अरे मैम आप बिल्कुल लीजिए मैम. So quickly I will cover volume 2, right? Sure. So can a chartered accountant in practice advertise his professional attainments? Sorry. Can a chartered accountant in practice advertise his professional attainments or services, or can be used any designation or expression other than chartered accountant on professional documents, visiting card, letterheads और signboard? So ये permitted नहीं है. सिर्फ जो आपके विजिटिंग कार्ड पे जो डिग्री है, यूनिवर्सिटी से MCom, BCom, LLB, CA, CS, you can mention about that. Otherwise you can not mention your expertise, like company, like you are expert in corporate law, tax consultant, other designation you cannot mention on your letterhead, signboard and visiting card. So whether a chartered accountant firm can use catchword, catchphrases on its website, letterheads and visiting card. So catchword जैसे excellence in a particular area, these type of catchwords are also not permissible, so that we cannot mention on our any document or stationery.
Can a member in practice print QR code on his visiting card, facilitating easy access to information? Yes, QR code is allowable, but QR code में सिर्फ QR कोड के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन है, आप वो मेंशन नहीं कर सकते. दैट इज नॉट परमिजिबल कि एक्सपर्ट है और या वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन पर्टिकुलर एरिया, दैट वी कैन नॉट मेंशन. Can a member firm of chartered accountant print its vision and values behind the visiting card? So no such printing of vision values behind visiting card not permissible as per our clause 6. What should be the size of signboard for the offices? तो signboard का specific size नहीं दिया है. जरूर ये मेंशन करा है कि लाइक ट्रेडर या शॉपकीपर के टाइप से बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग टाइप में नहीं होना चाहिए, ग्लो साइन नहीं होना चाहिए, लार्ज साइज बोर्ड नहीं होना चाहिए, बट यस उसमें प्रॉपर विजिबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती है उसमें विजिबिलिटी पर्पज से यू कैन डू, बट स्पेसिफिकली बोर्डिंग होर्डिंग टाइप से नहीं होगा. और रेसिडेंस पे आप अपना साइन बोर्ड लगा सकते हैं विद द डेजिग्नेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. आपका फर्म का जो नाम है वो रेसिडेंस पे नहीं लिख सकते, आपके सिर्फ नेम की चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीए करके आप मेंशन कर सकते हैं. कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑल्सो प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट? तो यस, दैट इज अलाउएबल. चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एडवोकेट ऑल्सो, बट they cannot simultaneously use both designation as an advocate and as a chartered accountant at the time of appearing at various court, subject to permission from bar council. Our chartered accountant can be advocate and they can also provide chartered accountancy services, but not simultaneously. Whether chartered accountant in practice can also practice as company secretary or cost management accountant. So member of the institute in practice who are otherwise eligible may also practice as company secretary, as cost management accountant. Such members shall however not use designation of the aforesaid institutes simultaneously with the designation chartered accountant. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन के साथ कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, XYZ आप वो यूज नहीं कर सकते. इन द फॉर्म ऑफ डिग्री यू कैन यूज MCOM, LLB, CA, CS, ICWI, but you cannot use with our name CA, CS, XYZ. That is not permissible. But yes, doctorate is permissible. CA, doctor, XYZ, that is permissible. Whether a chartered accountant in practice can use expression like income tax consultant, cost accountant, company secretary, that is not permissible. You all are aware about that. So whether a chartered accountant in practice can use designation being a functionary, like उनकी कोई भी यदि समाज में या कोई भी क्लब में या म्यूनिसिपल काउंसिलर कहीं भी कोई अदर डेजिग्नेशन यदि मिली है, हो सकती वॉलंटियरली मिली हो किसी क्लब की, सोसाइटी की, ट्रस्ट की, तो वो डेजिग्नेशन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए परमिसिबल नहीं है. Which designation can be mentioned by a chartered accountant in practice impaneled as insolvency professional on his visiting card letterhead? You all are aware about that this revised code already permitted insolvency professional for IP के लिए use कर सकते हैं. Registered valuer for valuers जो अभी exam clear करते हैं, they can use that designation. Then can a chartered accountant in practice give the date of setting up the practice or date of establishment on the letterhead or other professional document? That is not permissible. Only where you can mention that establishment date, year वगैरह आप mention कर सकते हैं website पे. You can mention about that, but stationery पे, letterhead पे, visiting card पे, that is not allowable. Then can a member in practice issue notice in the press relating to the success in an examination of an individual candidate? So that is allowable, but subject to simplified manner. आप उसमें कहीं भी advertisement नहीं होना चाहिए, but that is allowable कि आपका जो कोई पास होता है एग्जाम में और आपको न्यूज़पेपर में देना है, with the guideline you can publish that advertisement.
whether the designation chartered accountant along with the name of chartered accountant firm can be used on the greeting cards or in invitation card. Yes, as per clause 6 allowable hai. Chartered accountant as well as the name of the firm may be used in greeting card, invitation for marriage and religious ceremony, and any invitation for opening or inauguration of office of the members, or change in office premises, change in telephone numbers, provided that such greeting card or invitation sent only to clients, relatives and friends of the member concerned. So that is provisions related to clause 6. So can a chartered accountant firm give advertisement in relation to silver, diamond, platinum, this type of celebration? Yet it is allowable. Whether a member in practice can advertise their services on social networking website? Yes, that is allowable according to जो हमारा write up रहेगा, that is revised and I have already mentioned in my slide. आप उसको download कर लीजिए, उस content के हिसाब से you can advertise. So this is guideline of our advertisement that already been revised. So our member can refer by downloading that guideline. Whether member in practice can list themselves with online application based aggregator provided services, जो हमारा आजकल रहता है ना, BNI, Urban Club और काफी सारे ऐसे aggregator based जो services देते हैं, तो that is not permissible. Only institute registered network में allowed है, and our ethical standard as per that we have released this CA Connect search engine. This is ICI own search engine portal. तो यहाँ पर मेंबर अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं. 1 जुलाई को ये ऑपरेटिव सर्विस हो जाएगी. तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू कैन रजिस्टर्ड ऑन दिस CA Connect पोर्टल, और जो एक्सपर्टीज आपकी सर्विसेज है वो आप इसमें टॉप 5 सर्विसेज यू कैन मेंशन, दैट यू आर एक्सपर्ट इन GST, यू आर एक्सपर्ट इन कंपनीज एक्ट, यू आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो थ्रू CA Connect you can propagate your services. Can a member in practice be part of AOP with the other member or other professional? So again, not permissible as per our CA Act, only in the form of firm or LLP, only 2, or apart from practice individual. So that is allowable. AOP is not allowable. So whether a member in practice can provide payroll services? Yes, member in practice can provide payroll services, because as per our section 2, subsection 2, clause 1 and 3, these services can be provided by our member, but that is restricted if you are providing these services to your audit client. So whether a messaging application can be used by a member in practice to send messages to make people aware about their new practice and mention the service provided therein? That is not permissible. Member in practice engage in coaching, teaching activity in accordance with general and specific permission. यदि हमारे कोई practicing chartered accountant who are faculty and also they are in teaching, तो certain guidelines of advertisement उनको भी follow करना पड़ेगा. For example, they cannot display their teaching related activity on big boarding, hoarding and any other places except that particular coaching institute. और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सिर्फ नेम विथ सब्जेक्ट, वो जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट टॉट देयर इन, मतलब जहां भी वो जिस टाइप का टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, वो खाली मेंशन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं. Can a member in practice indicate in a book or an article published by him or a presentation made by him association with any firm of chartered accountant? So that is this year already allowed. They can add their name in that particular presentation, but at online YouTube वगैरह पे that is not allowable. But with book, article, presentation with designation chartered accountant, they can use name of firm also. So whether a member firm of chartered accountant can provide facility to the client access his document through logging in on the firm's website. Nowadays जितना हम लोग online services provide करते हैं, और यदि हमारे clients को हम ये access control देते हैं कि they can download their document through our website,
तो इन दैट केस कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर आपको एश्योर करना पड़ेगा विथ सर्टेन एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी. इवन यू कैन डेवलप चैट रूम फैसिलिटी ऑल्सो, बट क्लाइंट वाइज or amongst chartered accountant you can develop that type of facility, but for accessing any document type facilities you will have to assure that access control password security should be there. Then whether website of any chartered accountant can provide link, yes, chartered accountant website पे वो link provide कर सकते हैं ICI, government, कोई भी department, regulatory authorities वगैरह की. Can a member in practice render management consultancy and other services? Yes, good practice management area also. आप अपनी practicing chartered accountant firm के साथ management consultancy and other services provide कर सकते हैं, जो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 में दी है. अपेंडिक्स डी वॉल्यूम 2 में ऑलरेडी वी हैव गिवन n number of services our member can provide in the form of management consultancy and other services. In that particular corporate form of practice वो अपनी कंपनी बना सकते हैं. उसमें हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, और फैमिली मेंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जो हमारे मेंबर बन सकते हैं, और फैमिली मेंबर कैन बी शेयर होल्डर. तो दैट इज गुड फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस विथ आवर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, दैट इज अलाउएबल फॉर्मेट. तो ये एक अच्छा टूल है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का जो हमारे मेंबर्स यूज कर सकते हैं. Whether a member in practice permitted to undertake the management of NRI fund, that is not permissible because that is not added in management consultancy and other services. So NRI fund management services not allowed. So portfolio management services, that is also not allowed, specifically restricted in management consultancy and other services as per 19 clause. Broking, underwriting and portfolio management services totally prohibited. Chartered accountant practice is required to obtain any trade license, not mandatory. Our COP is sufficient for that. Whether a chartered accountant can agree to select and recruit personnel, conduct training, जो recruitment type की services है, that under management consultancy services chartered accountant provide कर सकते हैं, but with audit. Again आपको check करना है with audit. This type of recruitment services is not allowable. Chartered accountant in practice share his fees with the government in respect of government audit, specifically in certain state government. यदि आपने कोई ऑडिट करते हैं और उसमें गवर्नमेंट ये बोलती है कि 5% 2% ऑफ फीस आपको चालान जमा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ट्रेजरी में देना पड़ेगा, तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, तो दैट इज अलाउएबल. विद गवर्नमेंट यू कैन शेयर द फीस in the form of for the administrative expenses. So next question, can there be any sharing of fees between the widow or the legal representative of the proprietor of single member firm and the purchaser of the goodwill of the firm on the death of the sole proprietor of the firm? So many cases, dear members, this year we have come across these type of cases. So in that case, only in the form of goodwill or in the form of certain annuity you can give the legal representative और widow को आप दे सकते हैं. But जो प्रैक्टिसिंग, यदि आपने जैसे वो फर्म टेक ओवर किया है या गुडविल के उसमें पेमेंट किया है, तो जो प्रेजेंट अर्निंग है फर्म की उसके साथ लिंकअप नहीं कर सकते. दैट इज नॉट अलाउएबल. दैट कैन नॉट बी शेयर विथ विडो और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल आप पार्ट में 5 year 6 year एज पर द एग्रीमेंट यू कैन परफॉर्म दैट थिंग. Whether a professional accountant in public practice may pay or receive a referral fees or commission, that is allowable. आप दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल इफ मदान साहब सपोज ऑडिट सर्विस दे रहे हैं और उन्हीं का क्लाइंट बोलता है कि मुझे जीएसटी का भी करवाना है, तो वो मदान साहब किसी और सीए को रेफर कर सकते हैं, एंड इन दैट केस सीए टू सीए रेफरल फीस अलाउएबल. Chartered accountant in practice can be partner or designated partner in LLP partnership which is not doing professional work. Like you can be independent director, but in partnership firm you cannot be a silent partner or just for the stake you are there. You are not involved in day-to-day activity, but in partnership firm this type of sleeping partnership is not allowable. Only our member can be independent director.
So chartered accountant in practice can be become financial advisor, receive fees, commission, municipal institution, mutual fund, NBFC, not permissible. Whether joint auditor can be demand the working paper? No. Joint auditor cannot demand working paper of other auditor. So chartered accountant will be guilty of professional misconduct if he accept the auditorship of कॉलेज. यदि आप वहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी है, पार्ट टाइम फैकल्टी है, और उसके बाद यदि आप उसके ऑडिटर है, तो दैट इज नॉट अलाउेबल. एंड इवन यदि कोई ट्रस्ट का है जिसमें कि आप उसमें एम्प्लॉय या ट्रस्टीज या उस पर्टिकुलर उसमें एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट विल बी द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. वेदर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन एक्सेप्ट द सिस्टम ऑडिट ऑफ सेम एंटिटी? यस, they can accept that particular function also, but subject to Companies Act provision. Then can a chartered accountant sleeping partner in family business concern? Yes. बहुत सारे मेंबर्स का ये इशू आता है कि इसमें क्या प्रोविजन है. तो यस, अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन बी अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ फैमिली बिजनेस कंसर्न प्रोवाइडेड he takes prior and specific permission from the council in terms of regulation 190A regulation, and also but after that permission he will not be entitled to do a test function, but unka COP continue rahega in that case if any emergency is there. So chartered accountant in practice being a karta representative of HUF can do business. That is also only one case. Member of the institute can acquire interest in family business. किस मैनर में है? प्रोप्राइटरी पार्टनर या HUF में, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशन और पार्टीशन. मतलब यू कैन नॉट क्रिएट योर HUF योर ओन if you are in practice, but because of inheritance, succession और partition special permission लेनी पड़ेगी. साथ में आप अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकते, but for that type of यदि आपका जैसे HUF का ही पर्टिकुलर कोई फंड है, इन्वेस्टमेंट है, और जस्ट फॉर लिमिटेड पर्पस उसकी इनकम है, फॉर एग्जांपल रेंट है, FDs है, in that case that is certain with permission, that is allowable. So last 5-10 minutes I think, because already 7:17 I will try, otherwise hum log, because 60 questions are there. So is it permissible for an auditor to sign the audit report? ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर रहे हैं, आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस प्रीवियस ईयर की पेंडिंग है, तो उसके केस में, तीनों केसेस में जो हमने पहले भी डिस्कस करा है, दैट इज नॉट अलाउेबल. वॉल्यूम 1 के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो थोड़े से ज्यादा डिटेल्ड में है. सो जस्ट लास्ट में क्वेश्चंस कवर करती हूँ. वेदर अ मेंबर हु इज कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट and also rendering management consultancy services to his audit client can receive fees for such other services which are in excess of the audit fees. ये काफी सारी बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारी ऑडिट फीस से हमारी जो दूसरी सर्विसेज है वो एक्सीड हो सकती है कि नहीं. इन जनरलाइज यस हो सकती है. उसका क्या रेस्ट्रिक्शन है? दैट इज अकॉर्डिंग टू चैप्टर 9 ऑफ काउंसिल गाइडलाइन. सर्टेन केसेस जो उसमें मेंशन है वो मैं आपको कोट करती हूँ. इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, यदि 50 करोड़ से ऊपर से ज्यादा का जिसमें टर्नओवर है, उस केस में आपकी फीस स्टैट्यूटरी फीस से एक्सीड दूसरी सर्विस की फीस नहीं होनी चाहिए. एक्सेप्ट दो सर्कमस्टांसेस, आपकी फीस एक्सीड है, कोई इशू नहीं है. इस पर्टिकुलर केस में ऑडिट फीस में क्या क्या कंसीडर होगा? इवन इन केस ऑफ यदि आप पब्लिक सेक्टर PSU कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं कंपनी, या लिस्टेड कर रहे हैं, पर उसमें कौन सी फीस एक्सेप्ट नहीं होगी? 1, यदि आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स के हिसाब से कोई सर्टिफिकेट है, दैट विल कंसीडर अंडर ऑडिट फीस. आप दूसरे स्टैच्यू की ऑडिट कर रहे हैं, सपोज स्टैच्यूटरी भी कर रहे हैं, GST ऑडिट भी कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो कंसीडर एज ऑडिट फीस. दूसरा, आप रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कंसीडर अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस. उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सपोज कोई रिव्यू कर रहे हैं या क्वार्टरली आपने कोई ऑडिट कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो कंसीडर एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस. इनकम टैक्स पर्पज से आप कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं विद स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट विल आल्सो कंसीडर एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस. तो दीज आर प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सीडिंग ऑडिट फीस से रिलेटेड आपका कुछ है. तो इन केस ऑफ एक्सॉर्बिटेंट EMD,
यदि आपको लगता है कि कोई टेंडर में आप पार्टिसिपेट करते हैं और उसका ईएमडी कॉल किया है, तो सपोज 50 लाख का यदि कोई काम है और उसमें यदि ईएमडी 1 लाख या 2 लाख या रीजनेबल नहीं है, एक्सॉर्बिटेंट है, तो दैट केस यू कैन सेंड टू एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और वो अकॉर्डिंग टू क्वांटम रिप्रेजेंट करके उसकी ईएमडी कम करवाने का ईएसबी या पीडीसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर वाला पार्ट डे टू डे पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्ट डे टू डे में सिंप्लिसिटर जो हमारे ऑडिट डायरेक्टर है वो पार्ट नहीं ले सकते, बट बोर्ड के उसमें पॉलिसी मेकिंग में ले सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन एंड डे टू डे में नहीं ले सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस डायरेक्टर भी है, क्या डे टू डे ऑपरेट अकाउंट्स कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, नॉट अलाउेबल। मेंबर इन प्रैक्टिस किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट या हम लोग बोलते हैं ना कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर सकते हैं कि नहीं, तो बीइंग अ इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर यू कैन साइन, आप साइन कर सकते हैं। सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट भी यू कैन साइन, बट डे टू डे साइनिंग नहीं कर सकते। आरओसी और जिसमें कि आपको पर्टिकुलर रिव्यू या इस टाइप से करके आप कुछ साइन करें, दैट इज नॉट अलाउेबल। whether a member in practice who was auditor of a company can accept position independent director, it means कि यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप यदि ऑडिटर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 साल के बाद, दैट इज एज पर अवर कंपनीज एक्ट प्रोविजन सेक्शन 149। तो 3 साल के कूलिंग, यदि आप ऑडिटर है किसी कंपनी में, 3 साल के गैप के बाद आप डायरेक्टर बन सकते हैं। मेंबर होल टाइम डायरेक्टर नहीं अलाउड है, बट हमारी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में अवर मेंबर कैन बी होल टाइम डायरेक्टर। Chartered accountant firm can undertake the assignment management consultancy services of a company where partner of the firm is director simpliciter। Interesting है, यदि कोई आपकी फर्म में आपका पार्टनर डायरेक्टर है तो क्या आप दूसरी सर्विसेज दे सकते हैं? ऑडिट तो ऑब्वियस नहीं दे सकते, बट अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज एज पर अवर कोड ऑफ एथिक्स अलाउेबल, सब्जेक्ट टू दैट रेलिवेंट पॉलिसी। कंपनी की क्या पॉलिसी है दैट आपको देखना पड़ेगा। Whether a member in practice can become a managing director, whole time director, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी है उसमें कोई, जैसे कि हमारी ऑनररी ऑफिस बेयरशिप ऑफ चैरिटेबल एजुकेशनल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ था एज पर परमिशन ग्रांटेड जनरली एज पर अपेंडिक्स एच, उसी में ये पर्टिकुलर ऐड करा है। सेक्शन 8 कंपनी में यू कैन बी होल टाइम डायरेक्टर सब्जेक्ट टू, सिर्फ आप मतलब रेगुलर ऑनररी पोस्ट आप उसको होल्ड करते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर, वेदर अ मेंबर इन प्रैक्टिस हु अर्लियर हेल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर सिंप्लिसिटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब वाइस वर्सा सिचुएशन है, आप डायरेक्टर है और अब आपने डायरेक्टरशिप छोड़ दी है, रिजाइन कर दिया है और टेन्योर खत्म हो गया है, तो आप उसके ऑडिट हो सकते हैं। तो आपको 2 साल के कूलिंग ऑफ के बाद यू कैन बी ऑडिटर। सो प्रीवियस ऑडिटर का मीनिंग अगेन हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, प्रीवियस ऑडिटर डजंट मीन इमीडिएट प्रीवियस ईयर ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर सेम टाइप के असाइनमेंट में हो सकता है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले का भी यदि प्रीवियस ऑडिटर है फॉर दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, इन दैट केस दैट ऑडिटर विल कंसिडर एज अ प्रीवियस ऑडिटर, here meaning not immediate previous year auditor। फीस वाला वी कैन ऑलरेडी अनपेड है तो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते। केवाईसी नॉर्म्स ऑलरेडी फॉलोड करने हैं जो हमारे मैंडेटरी है, अकॉर्डिंग दैट अगेन जो एनओसी रिलेटेड ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और ईमेल जो लास्ट अपडेटेड ईमेल ऑफिशियल ईमेल है उसके थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस है अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड एडी। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट डन बाय गवर्नमेंट एंटिटी बैंक, काफी सारी जगह आता है कि आपके पास टाइम नहीं है कि रिटायरिंग ऑडिटर आपको कन्वे कम्युनिकेट करे और आपको प्रेशर रहता है कि आपको असाइनमेंट स्टार्ट करना है, तो अगेन आपको जो एक्सेप्टेंस देना है सब्जेक्ट टू करके देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट यू हैव ऑलरेडी started that particular audit, according that you can carry on without waiting response from outgoing auditor.
So whether chartered accountant who is appointed as a tax auditor for conducting special audit under Income Tax Act, तो अगेन दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आपको प्रीवियस ऑडिटर उस केस में नहीं होगा. यदि कोई भी रेगुलेटर या जैसे ये स्पेसिफिक ऑडिट में यदि अपॉइंटमेंट होता है तो मेंशन कोड ऑफ एथिक्स में किया है कि हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि आप जो स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट जिसने भी कंडक्ट किया है, इन हेल्दी वे you can convey, communicate to statutory auditor also if you are appointed by a income tax authority. So last question here, what are the professional reason for not accepting audit? Again मैंने mention किया था undisputed audit fees as per Companies Act disqualification and issuance of qualified report in case of आपको document रखना पड़ेगा कि unjustified removal नहीं है, because in case of unjustified removal, so because of time constraint I am just I have skipped so many slides. कभी भी all members are welcome for any queries and they can send ethical standard board. And thanks for the patient hearing. Thank you Indore branch for giving this opportunity, and really it's been a great pleasure. So over to again thank you Ji. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Firstly, for for designing such an extraordinary series on standard on auditings, and yes, thank you once again for always standing with Indore branch and for your extraordinary deliberation on code of ethics. And I think you have covered all the queries that are very normal to the members with your presentation. So thank you once again, Kemisha ma'am. Thank you R.S. Balaji sir once again, and thank you all the participants who have joined us from various locations. And tomorrow we will meet at 5:30 p.m. 5:30 to 7 p.m. We have with us Bala Subramaniam ji, and from 7 to 8 p.m. we will have C. Asim Trivedi sir. So 5:30 p.m. Tomorrow we will start. Thank you once again. Thank you all. Ji, I think Rakesh ji has raised, Madan sir has some query. Yes ma'am, we can बोलिए. हाँ जी. Good evening, ma'am. Good evening, sir. After such a nice deliberation, still some queries are there. Always welcome. The more we discuss, the more are the queries. No, because query is that whether ROC work can be done of that particular company where he is the auditor. Sorry, sir. Yeah. ROC work, will it not come under management services? So whether that work can be done? Yeah, because Balaji can also give that answer, because same type of function we can carry on, whether any regulator, like for example statutory audit है, आप GST audit भी कर सकते parallel. आपका वो concept नहीं होना चाहिए self review जो आपने करा और उसी को आपको check करना है, like that कि what you have performed and then you are now doing audit, not like that. Yes sir. Auditor तो है, ROC work में you are certifying that particular statements also. You are embedding your digital signatures. Correct. So whether that can be done, it will not be treated as a management service. It is a permitted professional service. Even the business relationship concept, when it is discussed in the disqualification with regard to an auditor, they have specifically stated business relationship excluding permitted professional services as per Companies Act as well as per CA Act. So we can very much do ROC services, sir. No restrictions in this regard. Sir, total management consultancy services, एक तो जो total we have given in the list our appendix, so that type of and other also services. So under that we are not giving opinion, audit or certification. That type of services we can perform depend on situation. तो ये तो same type की services है sir. Review करके या आपने कोई opinion या आप certify कर रहे हैं या आपने उसको दिया है तो that is allowable. But in case of if you are director in that company and day to day that is filing related formality, that is not allowable. Another point is, which is a very common and prevalent point, is that the problem of tender, quoting of the tender is still persisting among the professional. Last year there was a tender where the floating tender which was floated by the company, they again refloated it, that the price which is quoted is too less than which we are expecting as per the scope. Because sir, इसमें काफी detail
आपको डॉक्यूमेंट में भी प्रूव करना पड़ेगा। 2 प्रोविजन जो टोटली नए हैं, कॉस्ट शीट मैंडेटरी मेंटेन करना है। सेकंड वन इज रिलेटेड टू दैट सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, और जो एज पर कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायरमेंट लो फीस है, तो यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आपका जो स्टैंडर्ड है, एनी टाइम डॉक्यूमेंट में बी कॉल्ड बाय ICI. That's what I'm saying. In this regard, in July 2020, I have given the matter to the PDC, ICI. I have written a mail and they acknowledged it. But since July 20, no further information is received. I have Sir, given the full facts to the PDC. सर कॉस्ट शीट वाला तो मैंडेटरी आफ्टर रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन नहीं, तो इटसेल्फ. उसमें मतलब PDC को कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था in the interest of the profession कि yes, this type of practice should be curtailed. Sir, up the 3 checks are there. One is peer review. In this year, peer review already added, they have added this mechanism. If your firm appeared in any tender and you have received that particular assignment, so certain XYZ entire thing related to man hour, working hour, technical standard, all things will be there in the form of cost sheet, also in the form of all requirement related to standard. So that is also added in peer review also this year. But if the case is brought to the knowledge of the PDC, ICI, you can write, sir, again about the status of that case, whether maybe they have sent it to DC or they have inquired from member also. Yes, That is, we are not aware. Na? Yes, we are not aware. Yeah, so we can ask about the status of that. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you all the participants once again for making this event very interactive through raising your queries time to time, and thank you once again both the speakers for giving your precious time for Indore branch. Thank you so much. Thank you Balaji, special Thank thanks. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Vanessa, Balaji. ma'am, you are exploring like anything. It was just extempore speech. Thanks a lot. Very good listening and learning from. Just I was thinking that because of his short of time, how I can cover each and everything I should deliver. But wonderful deliberations, ma'am. Required 3-4 hours, I think. Thank you, Balaji.